اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل، آنے والے کل یعنی جمعرات کو اسی چینل پر رات 8:30 بجے لائیو بیان ہوگا، اور اس بیان کا بہت ہی اہم عنوان ہوگا کہ خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین غزہ میں 11-12 ہزار معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا چکا ہے، اور ظلم کی، آتنکواد کی انتہا کر دی ہے امریکہ اور اسرائیل نے، اور پوری دنیا خاموش ہے، پورے اسلامی ملک بے غیرت بے شرم خاموش ہے، اور خاموش رہ کر یہ سب ظالموں کی مدد کیسے کر رہے ہیں، اس عنوان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی اہم بیان آئندہ کل 8:30 بجے رات میں اسی چینل پر لائیو بیان ہوگا۔ آپ اور اپنی فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور سنیں اور دوستوں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر ہم غزہ، فلسطین اور اسرائیل اور حماس کی جنگ کو لے کر ہی آپ کے سامنے روزانہ پہنچا رہے ہیں۔ ابھی اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ گزشتہ کل شاتی جو کیمپ ہے وہاں پر اسرائیل اور حماس مجاہدین کا زبردست ٹکراؤ ہوا۔ اسرائیل کے تقریباً 13 ٹینک حماس اور مجاہدین نے تباہ کر دی ہے۔ کئی فوجی گاڑیوں کو بھی اسرائیل کے نقصان پہنچا ہے۔ حماس نے کئی اسرائیلی فوجیوں کو مارنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ گھات لگا لگا کر حماس جو حملے کر رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی امریکہ اور اسرائیل پریشان ہو گیا۔ جس قوم کو فلسطین کو 1 گھنٹے میں ختم کرنے والا تھا امریکہ اور اسرائیل، وہ 1 مہینہ 2 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہو رہا ہے اور ناک میں دم کر دیا ہے۔ خیر، خبریں آ رہی ہے کہ قطاع اور غزہ سے اسرائیلی فوج کی اکثریت بھگوڑے فرار ہو گئے۔ بمباری سے غزہ کی حالت یہ ہے کہ 70% آبادی غزہ کی بے گھر ہو گئی ہے۔ ایندھن کی کمی کی وجہ سے 60% طبی مراکز یعنی ہاسپٹل وغیرہ بند ہو گئے ہیں، اور 10,000 رہنے والی رہائشی عمارتیں مکمل طور پر برباد ہو گئی۔ اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا انکشاف کرنے والے صحافی کو اسرائیلی آتنکوادیوں نے گرفتار کر لیا۔ یعنی اسرائیلی کتے کتنے مارے جا رہے ہیں یہ بتاؤں گا، ڈر مت پھیلاؤ اسرائیل کے دلوں میں۔ تو جس
पत्रकार ने, जर्नलिस्ट ने इजरायली फौजियों की मरने की खबर लगाई थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और हालात ये है कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने गजा में गजाई बहरान की वार्निंग दे दी है। वहीं पर हमास ने कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहदा, यूएनओ और बैनुल अक़वामी फरीकों से ये डिमांड करते हैं कि इजराइल और अमेरिका के इस जुर्म को जो इंसानियत के खिलाफ वो कर रहा है और जेनोसाइड और नस्लकुशी कर रहा है और गजा में पानी की सप्लाई बंद कर रहा है, इस जुर्म को रोका जाए। और शिमाली गजा में तकरीबन यूं समझिए कि 9 लाख फलस्तीनी इस वक्त ऐसे हैं जो बगैर पानी, दवा, खाने के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आइए दिन दूसरी बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मुल्क के कई स्टेट में इलेक्शन की गहमा गहमी है और भागम भाग है। खबर आ रही है मिजोरम से कि पहले मरहले की वोटिंग वहां पर गुज़िश्ता कल खत्म हुई। छत्तीसगढ़ की हालत है कि 71% वहां पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई है। और ईवीएम में यूं समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अब उम्मीदवारों की किस्मत बंद हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने हुकूमत बनाने का दावा किया है। वहीं पर खबरें आ रही है कि मिजोरम की तमाम सीटों पर पोलिंग के 77% वोटिंग हो चुकी है। आइए, दिवाली का त्यौहार है और दिवाली के त्यौहार में पटाखे, बारूद वगैरह की जो चीज़ें हैं वो फोड़ी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्लियर तौर पर दे दिया है कि सिर्फ 3 घंटे पटाखे वगैरह छोड़े जाएंगे, फोड़े जाएंगे, शाम 7 से लेकर रात 10 बजे तक। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पटाखों पर यह पाबंदी मुल्क गिर पैमाने पर है, यानी किसी एक स्टेट में नहीं, दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे मुल्क गिर पैमाने पर है। अदालत ने रियासती हुकूमतों को, स्टेट गवर्नमेंट को आदेश जारी कर दिया है कि वो फजाई शोर की आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दामात करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि असल काम लोगों को बेदार करना है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी और बाद में कहा कि पाबंदी जारी रहेगी और इस पर अमल दरआमद किया जाएगा। लेकिन आप और हम सब देख रहे हैं कि धूम से पटाखों की दुकानें सजी हुई है, बिक रहे हैं और कारोबार बड़े पैमाने पर करोड़ों अरबों रुपये का चल रहा है। आइए राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि राजस्थान में भी इलेक्शन की गर्मी है। बीजेपी ने कई सीटों पर टिकट का ऐलान कर दिया है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि राजस्थान में बीजेपी ने गलती से मुसलमान को जो टिकट दे दिया था वो फिर वापस ले लिया। जी हाँ, राजस्थान में बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अजमेर की सीट से गलती से दिया गया मुसलमान को टिकट वो भी वापस ले लिया गया है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक मसौदा असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक सिंह चौहान का टिकट मंसूख कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक चौहान को बीजेपी ने हिंदू राजपूत समझकर टिकट दिया था, लेकिन अभिषेक चौहान मुसलमान निकले, यानी गलती से टिकट दे दिया गया था। कहा जा रहा है कि तब्दीली मजहब के बाद मुसलमान बने। अजमेर में विश्व हिंदू परिषद इन लोगों की वापसी के लिए काम कर रही है जिन्होंने इस्लाम कबूल करके हिंदू मजहब इख्तियार किया था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राजपूत समझा और उन्हें टिकट दे दिया। अभिषेक सिंह पर हकायक छुपाने का इल्जाम है, इसलिए बीजेपी हाईकमान ने उनका नाम हटा दिया है। आइए दिन बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता कल यानी मंगल को सहाफियों के डिजिटल आलात, पत्रकारों के जो डिजिटल आलात है जैसे कैमरा वगैरह जो भी है, इसको जब्त करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अफसोस का, तशवीश का इजहार किया और केंद्र सरकार से कहा कि वह तहकीकाती एजेंसियों के इख्तियारात को कंट्रोल करने के लिए बेहतर रहनुमा उसूल बनाए। जस्टिस संजय किशन और जस्टिस सुधांशु की बेंच फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की दरखास्त पर समाअत कर रही थी। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि वह कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की बेजा मुदाखलत के खिलाफ हिफाजती इक़दाम करें और डिजिटल आलात को जब्त करने के लिए रहनुमा खतूत वज़ा करे। आप जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है और हुकूमत के नुमाइंदे
या फिर यूं समझिए कि डिपार्टमेंट के लोग और एजेंसी के लोग बाकायदा पत्रकारों, सहाफियों, जर्नलिस्ट को भी दबाने और कुचलने का काम कर रहे हैं और कभी कभी कई जगह पर उनके कैमरे वगैरह और उनकी चीजें, उनका सामान जब्त कर लिया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि पत्रकारों के आलात जब्त करना यह संगीन मामला है, रहनुमा खतूत हुकूमत को जारी करना चाहिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जो मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर और पद पर बैठा है, लेकिन उस पद की सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर कोई करते हैं तो खुद मोदी जी अपने अल्फाजों, अपनी जबान और अपने बगैर सोचे समझे उटपटांग बयान से करते हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने अंग्रेजी की वकालत करने पर राहुल गांधी पर तंज किया। मोदी जी ने और मोदी जी ने कहा कि मुल्क तो आजाद हो गया है लेकिन उन पर अंग्रेजी का भूत नहीं गया। जी हाँ, पीएम पद पर बैठा हुआ शख्स अंग्रेजी की वकालत करने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को इस तरीके से तंज कर रहे हैं और एक खास जबान जो पूरी दुनिया की जबान है और जिसके जरिए से मुल्क, यूं समझिए कि मुल्क का कोई स्कूल, कोई बच्चा खाली नहीं है जो अंग्रेजी न सीखना चाहता हो और न बोलता हो। लेकिन क्या करे, राहुल गांधी ने अगर अंग्रेजी की वकालत कर दी तो फिर अंग्रेजी से भी नफरत मोदी जी को हो गई। राहुल गांधी ने और अगर कांग्रेस ने अपनी अपोजिशन पार्टियों का नाम इंडिया रख दिया तो फिर मोदी जी को इंडिया से भी नफरत हो गई। यानी कांग्रेस जो करें, राहुल गांधी जो करें, वो मोदी जी के निगाह में गलत हो जाता है और फिर वो ये भी नहीं सोचते हैं कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त महाराष्ट्र के कांग्रेस के सुप्रीमो और प्रदेश अध्यक्ष दबंग नेता नाना पटोले ने यह कहा है कि बीजेपी इस वक्त भारत को रिजर्वेशन मुक्त करने की साजिश कर रही है और कांग्रेस ने यह कहा है कि गुर्बत को जात करार देकर अवाम को गुलाम बनाने का घटिया और नीच खेल बीजेपी खेल रही है। मराठा और ओबीसी बिरादरियों के दरमियान दरार पैदा करके रियासत में समाजी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के दो वजीर रिजर्वेशन पर एलानिया तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। हुकूमत में ही इत्तेफाक राय नजर नहीं आ रही है। इसलिए रिजर्वेशन से मुताल्लिक बीजेपी और शिंदे हुकूमत अपना मौकफ वाज़ेह करे। यह मुतालबा, यह डिमांड महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने किया है और साफ तौर से यह कहा है कि बीजेपी भारत को रिजर्वेशन मुक्त करने की साजिश में लगी है और इस नाम पर भी लोगों को बांटने में लगी है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। बड़ी खबर इस वक्त रियासत बिहार से आ रही है। जी हाँ, बिहार की जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी का इक्तिसादी सर्वे असेंबली में पेश किया जाएगा। आम जात के 25% लोग गरीब है। उस असेंबली सर्वे में ये मर्दमशुमारी के सर्वे में की बात सामने आई है कि आम जात के 25% लोग गरीब हैं और दर्ज फेरिस्त जात के 93.42% लोग गरीब है। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान सामने आया है कि बिहार में अब रिजर्वेशन का दायरा 50 से 75% करने की तजवीज दी गई है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि बिहार में जब जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी हुई तो फिर तमाम जात का असल बायोडाटा सामने आ गया और उसी बायोडाटा को लेकर यह बात सामने आ गई कि बिहार में आम जात के लोग 25% लोग गरीब है और दर्ज फेरिस्त जात के लोग 93.42% लोग गरीब है। इसलिए बिहार में रिजर्वेशन का दायरा 50 से 75% करने की तजवीज सामने आई है। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने गजा और फलस्तीन के हालात को लेकर आ रही है, मगर
अमेरिका से आ रही है। जी हाँ, अमेरिका जो आतंकवाद कर रहा है और अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो आतंकवादियों का बाप बनकर बैठा है और इजराइल को हथियार और पूरी मदद दे रहा है, तो इतनी प्यारी खबर आ रही है कि अमेरिका में खुद जो अमन पसंद लोग हैं, यहूदियों में भी जो अमन पसंद लोग हैं, उन्होंने जबरदस्त अमेरिका में आंदोलन किया जो बाइडेन और अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ और इजरायली हुकूमत के खिलाफ। उन लोगों ने नारे लगाए और खबरें हैं कि वो बाकायदा उन जहाजों पर घंटों लटक गए जिन जहाजों के जरिए से बाकायदा अमेरिका आतंकवाद का सामान इजराइल को रवाना कर रहा था। यानी आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी खबर है। यानी अमन पसंद लोग, अच्छे लोग हर जगह है, यहूदियों में भी है, इजराइलियों में भी है। हालांकि यहूदी और इजराइली वो कौम है कि 99% हरामखोरी और आतंकवाद इनकी रगों में है, मगर यहूदियों में से भी एक कौम ऐसी है जिन्होंने अमेरिका में गुज़िश्ता कल खुलकर अमेरिका और इजराइल हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और उन लोगों ने इजराइल के लिए हथियार ले जाने वाले अमेरिकी फौजी जहाज को रोक लिया। इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के नागपुर शहर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने बड़ी खबर भेजी है। जी हाँ, नागपुर में एक अजीब किस्म का वाकया पेश आया कि चाय और बिस्किट न मिलने पर डॉक्टर ऑपरेशन को बीच में छोड़कर निकल गया। आखिर खातून बेहोश हो गई। न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक कहते हैं ना कि चाय की अगर तलब हो तो कोई क्या करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां तक कि ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं जो अपनी मोटरसाइकिल निकालकर कई किलोमीटर दूर अपने पसंदीदा टी स्टॉल पर चाय पीने के लिए जाते हैं। लेकिन एक मुख्तलिफ कारनामा एक डॉक्टर का सामने आया जो चाय के लिए दरमियान में ही ऑपरेशन छोड़कर चला गया। यह वाकया महाराष्ट्र की झेली राजधानी नागपुर में पेश आया है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि यह वाकया नागपुर में जिला काउंसिल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पेश आया, जिसकी वजह से बेहोशी की दवा लेने वाली चारों खवातीन मरीज परेशान हो गई। जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मामले की जांच का हुक्म दे दिया है। एक सरकारी अस्पताल में फैमिली प्लानिंग सर्जरी के लिए 4 खवातीन को बेहोश किए जाने के बाद उनकी सर्जरी पर जबरदस्त हंगामा हुआ। यह बात सामने आई है कि चाय और बिस्किट न मिलने पर डॉक्टर ने सर्जरी करने से इनकार कर दिया और बीच में से ही निकल गया। डॉक्टरों की इस बेहिसी से गांव वालों में काफी गुस्सा है। यह वाकया 3 नवंबर को जिला के मोदा तहसील के खट में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पेश आया। इस अस्पताल के डॉक्टर का नाम तेजराम भालावी बताया जा रहा है।